वी वर रेडी टू वर्क। हमने जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी उसकी एडिक्वेट फाइनेंसिंग रखी। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जी नई स्कीम्स की अप्रूवल भी बंद कर दो, जो टेंडर नहीं हुई अब अप्रूव्ड स्कीम्स इस असेंबली ने अप्रूव की हैं। इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुंचता था कि असेंबली की अप्रूव्ड स्कीम्स को वो बंद करे कि ना आगे चलाओ, लेकिन जी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। हम कुछ कहते थे तो कहते थे कि जी आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। इसके बावजूद इस साल, और मैं आगे बात करूंगा व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स, हमारा हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट स्पेंडिंग हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। In a previous administration, the collective focus remained on combating natural disasters. Now Sindh is poised for growth. So we aim to enhance provincial revenues through resource mobilization by way of introducing few minimal taxes, rationalizing the existing ones, and equalizing the tax rate with sister provinces and federal authorities. The economic revival requires limiting ourselves to essential expenditures, completing capital projects, and making Sindh an investment destination. Sir, now I would like to unveil the fiscal plan of the 4th consecutive tenure of the Pakistan People's Party government in Sindh, starting from the revised estimates of current financial year. Mr. Speaker, sir, the revised estimates for provincial expenditure have been proposed at rupees 2,252 billion for the year 2023-24 as against the budget estimates of rupees 2,282 billion. It includes revenue, capital and development expenditure. Now I would like to present the main features of provincial expenditure. For current revenue expenditure, revised estimates for the year 2023-24 have been pitched at 1,584.2 billion, representing 25% increase against current year's budget estimates of 1,411 billion. The increase is mainly due to employee-related expenditure. For current capital expenditure, revised estimates for the year 2023-24 has been proposed at rupees 139 billion, showing an increase over current financial year's budget of rupees 136 billion. This increase is due to surging rupee-dollar parity within the range of rupees 275 to rupees 307 per US dollar, raising the expenditure towards repayment of loans. The estimates for investment activities have been revised to rupees 93.6 billion as compared to the budget estimates of rupees 88.2 billion for the current financial year 2023-24. So the development expenditure. So here I would like to state, और मैं पहले बता चुका हूँ, that our previous government presented the budget last year keeping in view end of its constitutional tenure in August 2023. We planned the development process so well that the pace of development activity continued even during the caretaker setup. It should have continued even more, even at a higher rate, but unfortunately I told you what the ECP did. It is because of this planning that the current fiscal year has witnessed the highest development expenditure ever. We estimate that the development expenditure will cross rupees 480 billion in the current financial year as against rupees 313 billion in last financial year. It is important to draw the House's attention to the fact that federal government in 2023, ये भी मैं आपको बता देता हूँ सर, पिछले साल federal government ने 52.9 billion federal PSDP में रखे for Sindh projects, और ये बड़ी मुश्किल से रखे गए थे इसलिए कि उससे पहले 4 साल सूबा सिंध को कोई एक स्कीम नहीं दी थी, वो जो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने। और फिर जब हम कोलेशन का पार्ट बने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी फेडरल के गवर्नमेंट के लोग, उनके प्रेशर की वजह से और उनकी जस्टिफिकेशन की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 53 अरब रुपए डाले थे 2023-24 में फेडरल PSDP में फॉर सिंध प्रोजेक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ इन 53 अरब से। सो मच सो कि 29 जनवरी 2024 को, यानी इलेक्शन से 8-9 दिन पहले, केयर टेकर गवर्नमेंट एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाती है और कहती है कि जिन प्रोजेक्ट्स में जीरो एक्सपेंडिचर है उन सबको निकाल दो। अच्छा, सिंध को मैंने आपको बताया पिछले 4 साल में एक स्कीम नहीं दी, तो हमारे तो सारे नए प्रोजेक्ट्स थे। 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स सिंध के निकाल दिए इन लोगों ने। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हमने दोबारा केस पेश किया NEC में, हमने रिवर्स कराई वो डिसीजन केयर टेकर गवर्नमेंट की,
और वो 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स दोबारा इंक्लूड हुए। और ये जो साल अभी आ रहा है उसमें पिछले साल उन्होंने 23 अरब रुपए रखे थे फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, जो जिसमें 88 अरब थे, और 25 अरब रुपए रखे थे हाउसिंग के लिए, 5 अरब एजुकेशन के लिए। अगले साल इन पहले प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब रुपए रखे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। अब ये हमने उनसे ये पैसे लेने भी हैं, और मैं ज़रूर अपने ऑगस्ट हाउस को, अपने कॉलीग्स को उसकी अपडेट देता रहूँगा कि कितने पैसे है, ताकि हम आपकी भी मदद और आपकी आवाज़ भी हमारे साथ हो फेडरल गवर्नमेंट से अपना हक लेने के लिए। मैंने ये सारी So moving to the figures, the revised estimates for 23-24 for provincial development expenditure stand at rupees 549.5 billion. It includes 283 billion for provincial ADP, 24 billion for district ADP, and 240 billion for foreign project assistance. सर कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं जो हमारी पिछले साल हुई। हमने सिंध इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम 6.12 अरब रुपए का कंप्लीट किया है। खिपरो से उमरकोट रोड 4.1 अरब रुपए का हमने कंप्लीट किया है। Reconditioning of Mehran Highway from Landi, Karachi to Port Qasim, 1.76 billion. Construction of new 100 MGD pump house at Dhabiji costing 1.62 billion. आप अगर rehabilitation, reconstruction of Shara Noorjahan from Abdullah College to Kalanaria Chowk, costing 3.36 billion. Benazir Institute of Urology and Transplant, District Shaheed Benazirabad में 1.5 अरब रुपए की हमने कंप्लीट की है। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी डिटेल्स बजट बुक्स में भी हैं, और आपको एक और किताब मिली होगी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से, उसमें भी ये सारी डिटेल्स हैं। मैं वक्त नहीं लूँगा आपका डिटेल्स को बताने के लिए। प्रोविंशियल रिसीट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स एंड ये प्रोविंशियल रिसीट्स पे आता हूँ मैं। सिंध इज लार्जली रिलायंट ऑन फेडरल ट्रांसफर्स बीइंग principal component of our resource envelope. It comprises share from divisible pool and straight transfers. Revised estimates of federal transfers have been proposed to be rupees 1.395 trillion as opposed to rupees 1.353 trillion for the financial year 2000, as budget estimates of 1.353 trillion for financial year 2023-24. Revised estimates for divisible stand at 1.264 trillion rupees as against budget estimates of 1.255 trillion, and customs and federal excise duties of rupees 179.6 billion and rupees 81.98 billion respectively. Revised estimates for straight transfers stand at rupees 97.44 billion against budget estimates of 64.42 billion for the year 2023-24. We expect to receive the budgeted amount by the end of current financial year 2023-24. ये सारे पैसे हमें मिले नहीं हैं, अभी 2 किस्तें आनी बाकी हैं, एक 17 को शायद ना आए, ईद का दिन है उसके बाद आए, या हो सकता है आज आखिरी दिनों को हो सकता है आज आ जाए हमारी सेकंड लास्ट किस्त, और एक 30 जून को जो किस्त आनी है तब वी आर होपिंग दैट द फेडरल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस विद दिस मनी। सर हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में मैं बता दूं, हम सबसे ज़्यादा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस हमारा अगेन एक सक्सेस स्टोरी है। सिंध सेल्स जो हमारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड है हमने 2012-13 में बनाया था। 18th अमेंडमेंट से पहले ही वैसे तो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशियल सब्जेक्ट था हमेशा से, लेकिन फेडरल उसको कलेक्ट करती थी। 2002 की वक्त में इस प्रोविंशियल असेंबली ने उस वक्त में उनको इजाज़त दे दी थी, और जब आखिरी उन्होंने हमारे लिए कलेक्ट किया तो उन्हें तकरीबन 14.5 अरब रुपए कलेक्ट किए थे फेडरल गवर्नमेंट ने जो सिंध हुकूमत को दिए थे। हमने वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशलाइज किया, NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड में उसको लिखवाया स्पेसिफिकली, और हम पहला प्रोविंस थे जिसने वो कलेक्ट करना शुरू किया। पहले ही साल में हम 14.5 से 25 अरब पे गए, और ये जो साल गुजरा है उस पर हमारा टारगेट 235 अरब रुपए है फॉर सेल्स टैक्स एंड सर्विस, और इंशाल्लाह ताला हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 78 बिलियन का है। उसके साथ साथ हमारी जो प्रोविंशियल रेवेन्यूज़ हैं वो इस साल के 475 बिलियन टोटल होने हैं। इसके अलावा जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस हमें इस साल मिली है, एंड दिस ऑल गोज़ टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वो तकरीबन 240.07 बिलियन है, और इसकी और 4.9 बिलियन ऑफ बजटरी सपोर्ट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिल जाएगी।
सर, अब मैं 2024-25 के बजट पे आता हूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला हम पास कराने जा रहे हैं। सर, ये बजट और अगले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इस मैनिफेस्टो जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अनवेल किया था, हमने अपनी सारी बजट और अगले 5 साल इस पे मॉडल करने हैं जो उन्होंने बातें कही थी। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वफाक से ताल्लुक़ रखती हैं जो हम नहीं कर सक रहे, लेकिन जो सूबाई दायरेकार में आती हैं इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब ने जो एक नई सोच की बात की थी, उस नई सोच के साथ हम इस बजट पे पहले साल से काम कर रहे हैं और मैं बताऊंगा उसके बारे में कुछ आपको। So the budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,056 billion, and as I told you earlier, it is a balanced budget. हमारी जो इनकम है उसी का हम उतना ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमारी पिछले सालों में डेफिसिट बजटिंग हो रही थी, लेकिन इस साल हम बैलेंस बजट लेके आ रहे हैं लोगों को होप देने के लिए, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट के टारगेट्स बहुत ह्यूज हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अगर ये टारगेट्स पूरे हुए तो इंशाल्लाह ताला हम अपने पूरे जो प्लान्स है उसमें कामयाब होंगे। सर, करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज पिच्ड एट रुपीज 1.912 ट्रिलियन, which is 33.5% higher than the budget estimates of 1.411 trillion in 2023-24. The increase is mainly due to inflationary impact on operating expenses, enhancements of grant and aid to non-financial institutions including hospitals, public sector universities, local councils, necessary salary raise in shape of relief allowance to government employees, and raise in pension expenditure as well as increase in pension. Major sectors which are going to record enhanced budgetary provision for next year, given the impact in general public welfare, are as follows. सर, हमारा सबसे बड़ी contribution education में होगी। Education का budget हमारा on the revenue side is 454 billion rupees versus 334 billion जो इस current financial year में था। और this includes primary, secondary, middle school, colleges और university level। ये 36% increase है और ये हमारी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 25% बनता है। The provision of funds for Sindh Higher Education Commission is rupees 34.5 billion against last year's budget of rupees 23 billion. Universities का आपने सुना होगा फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक यूनिलैटरल फैसला करके आज से कोई 15 दिन पहले हमें पता चला और हमें सिंध हाई एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि जी वो कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं रखेगी, जबकि NFC अवार्ड और CCI की डिसीजन है कि जब तक अगला NFC अवार्ड आए दे हैव टू कंटिन्यू फंडिंग द यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने उसको 2011 पे फ्रीज कर दिया। हमें अपने पास से जो पहले हम कभी नहीं करते थे, हमने पहले साल 5 अरब से शुरू किया और अब 34 अरब रुपए हम यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने पहले अपनी फंडिंग रोक दी थी। जब हाई एजुकेशन कमीशन ने मुझे लिखा, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, मैं ग्रेटफुल हूँ PM साहब का कि उन्होंने जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि नहीं आप ये यूनिवर्सिटीज़ के पैसे दोबारा शुरू करें, तो वो तकरीबन 12 अरब रुपए जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ को मिल रहे थे वो मिलेंगे नहीं, तो एक और गैप हो जाता हमारे पास। Sindh government provides free textbooks to all students of pre-primary to metric in all government schools as well as its partner schools. For this purpose, the budgetary allocation for distribution of textbooks has been enhanced from rupees 2.5 billion to rupees 7.5 billion in 2024-25. Furthermore, rupees 12 billion has been allocated for purchase of furniture and fixtures in 3 phases, out of which rupees 4 billion has been earmarked in 2024-25. Rupees 6.875 billion allocated under Sindh Reform Support Unit budget, which includes 2.375 billion for restoration of flood-damaged schools. Rupees 1.65 billion has been allocated for operationalization of non-formal education centers in district to reduce out-of-school children's rate. Moreover, rupees 800 million has been allocated for girls' stipends to encourage female literacy rate have been provided in budget 2024-25. So, हमारा दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर आफ्टर एजुकेशन जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जो इस असेंबली के जरिए हम रिक्वेस्ट करेंगे बजट अप्रूव करें, वो है हेल्थ सेक्टर। For the improved service delivery in the health sector, the budgetary provision has been proposed at rupees 300 billion against rupees 227.8 billion last year, with an increase of 32%.
मैं सिर्फ और डिटेल्स छोड़ रहा हूँ। सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग यानी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हमारा तीसरा सबसे बड़ा हेड जाता है, उसमें 172 अरब रुपए हम प्रपोज करेंगे कि खर्च करें। लोकल काउंसिल्स जो कि थर्ड टियर गवर्नमेंट्स हमारी हैं, आपको याद होगा आज से 1 साल पहले जब पिछले साल हमने बजट अप्रूव किया था तो इन लोकल काउंसिल्स को 80 अरब रुपए मिलता था। ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल जुलाई अगस्त में हमने उसको बढ़ा के 120 अरब किया था। अगले साल 160 अरब रुपए हम प्रपोज कर रहे हैं फॉर लोकल काउंसिल्स, और ये हर लेवल पे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने डिलीजेंटली काम करके हर लेवल पे इंक्रीज़ होंगी। एक जो मुझे रेडली याद है, बाकी तो हर एक के अलग अलग हैं। जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनको हम, जो रूरल यूनियन काउंसिल्स हैं उनको 5 लाख रुपए देते थे, उनको अब 5 लाख की बजाय 10 लाख दिए जाएंगे। और जो अर्बन एरियाज़ में यूनियन काउंसिल्स या यूनियन कमिटीज़ हैं उनको 5 लाख उनको भी देते थे, उनको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे अगले साल से, ताकि वो कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरीज दे सके और कुछ काम भी कर सके। इस तरीके से हर लेवल पे पैसे बढ़ाए गए हैं सर। उसके बाद इरिगेशन और इरिगेशन सेक्टर जो है हमारा, उसमें 35.9 बिलियन है। एग्रीकल्चर में 30.7, तो ये वाटर जो इरिगेशन से रिलेटेड तकरीबन 65 अरब रुपए इधर जाते हैं हमारी इरिगेशन के और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसके अंदर 7.62 बिलियन रुपीज़ हैं जो हम सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर 12.26 बिलियन है फॉर सिम पीपल सपोर्ट प्रोग्राम। सर एक बड़ी एक्सपेंडिचर हमारी है सैलरीज़ की। आपने देखा होगा महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है, फिर टैक्सेस भी फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। तो हमने बड़ा गौर विचार किया इस चीज़ के ऊपर कि सैलरी इंक्रीज़ क्या होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड 25% ग्रेड 1 to 17 और 22% 1 to 16 और 17 अबव 22% की। पंजाब हुकूमत ने भी कल बजट अनाउंस किया, उन्होंने भी यही इंक्रीज़ की। हमने बैठ के बड़ी डिटेल्ड वर्किंग की। हमने देखा कि जो मिनिमम सैलरी हम रखना चाह रहे हैं, वो आगे उस पर आऊँगा, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो 37,000 रुपये हो। अच्छा 37,000 रुपये अगर मिनिमम सैलरी करते हैं तो हम सरकारी मुलाजिम को भी तो 37,000 रुपये दें। अगर हम 25% बढ़ा रहे थे तनख्वाह, ग्रेड 1 to 6 वाले सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबका था हमारा, तो वो जो एंट्री लेवल थी उसकी तनख्वाह इस वक्त 28,000 रुपये है, वो 4,000 के करीब बढ़ के या 34,000 बन रही थी, 37 नहीं बन रही, 33,000 समथिंग बन रही थी। तो हमने क्या किया है कि ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर 30% तनख्वाह बढ़ने के बाद भी 37,000 रुपये नहीं बनती, इसलिए कि अगर आज मैं ग्रेड 1 में नौकरी करूं तो मुझे तकरीबन 32 साढ़े 32,000 रुपये ये 30% बढ़ने के बाद मिलेंगे। और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि 37,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए। तो हम एज पर्सनल पे उन लोगों की जिनकी 37,000 से कम तनख्वाह है, हम एक पर्सनल पे एक डिफरेंशियल का देंगे ताकि उनकी मिनिमम तनख्वाह 37,000 रुपये हो जाए। ये सारे एम्प्लॉयज़ के साथ होगा और ये अफेक्ट होगा ग्रेड 1 to 6 तक। 6 के बाद ये नहीं होगा। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस। हम 1 to 6 की, और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। मिनिमम वेज की मैंने बात की। वी आर प्रपोजिंग that the minimum wage in this province be set at rupees 37,000. I know this is a proposal, और फिर हमारा लेबर डिपार्टमेंट एक तरीक़ाकार होता है जिसमें एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट साथ बैठ के एग्रीमेंट करती है। मिनिमम वेज बोर्ड होता है, वो मिनिमम वेज बोर्ड से हम इंशाल्लाह ताला चाहेंगे कि ये 37,000 रुपये की तनख्वाह पूरी हो। करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आता हूँ। अगले साल हम 184.8 बिलियन दे रहे हैं अगेंस्ट 136.256 बिलियन। इसकी मैं आपको मोटी मोटी बता दूं कि इसमें एक तो हम जो रिपेमेंट ऑफ लोन्स होती है करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो आता है, फिर हम
वायबिलिटी गैप फंड जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर तकरीबन 60 अरब रुपए उसके रखे जा रहे हैं इसमें फॉर दी करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बड़ी ये हैं। फिर जो पेंशन फंड और उसको फंड करने के लिए ताकि हम आगे पेंशन की बोझ में, और मैं प्रॉब्ली आज बहुत लंबी हो जाएगी स्पीच, अपनी वाइंडिंग अप पे ज़रा बताऊंगा कि हम क्या स्टेप्स रिगार्डिंग पेंशन्स लेना चाहते हैं इन द फ्यूचर ईयर्स। अब आते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। सर, Sindh is in dire need of infrastructure development post-2022 flood devastation. Because of the unwavering support of international donor agencies, we were able to steer the development activities in the last 2 years on a sustainable basis. I would like to thank all the international donor agencies for their support and commitment to the government and the people of Sindh. Here, I, as leader of the August House, would once again like to thank the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, who, while being the Federal Foreign Minister, keenly focused on effective collaboration with foreign countries and international development agencies. Resultantly, Sindh government was able to revive appropriate and timely assistance, able to receive appropriate and timely assistance of our foreign development partners. Budget estimates for year 2024-25 for provincial development expenditure stands at 959.1 billion. ये हाईएस्ट एवर है। अच्छा, मैं अगर इसमें 60 अरब जो वायबिलिटी गैप फंड के आप बताएं तो ये 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का बजट है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, अक्सर बात होती है कि आप घटाएं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं और करंट एक्सपेंडिचर घटाएं, टोटली एग्री विथ इट। सिंध का बजट का 33% से ज़्यादा डेवलपमेंट में जा रहा है, इस साल प्रपोज्ड है। और बाकी वफाक और अभी 2 सूबों की आई, मैंने एक की तो नहीं, कल जो आई है बजट उसमें देखिए उनका डेवलपमेंट बजट 892 अरब रुपए है और उनकी 5 ट्रिलियन की बजट है, 5000 अरब से ऊपर की बजट है, हमारी 3000 की बजट है। तो उनकी बजट भी हमसे तकरीबन 60 गुना ज़्यादा है और हमारी एक्सपेंडिचर उनसे 200 अरब रुपए ज़्यादा है डेवलपमेंट की। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। सर, इस जो बजट में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर 55 अरब रुपए हमने डिस्ट्रिक्ट एडीपी के भी रखे हैं टोटल। So now I'll come to the revenue receipts. Federal transfers depend on annual collection by the Federal Board of Revenue. We appreciate the federal government's commitment to achieve the annual targets, thereby assuring transfers to Sindh government according to the plan in the current financial year. We hope to receive funds according to estimates of the next financial year 2024-25 as well. With this hope, budget estimates of federal transfers have been set at rupees 1.9 trillion for the financial year 2024-25, including rupees 1.7 trillion from divisible pool component and rupees 6.4 billion for state transfers and 46.9 billion for OZT grants. The estimate shows an increase of 40.5% over budget estimates of 1.35 trillion in current financial year. So, हमारे provincial tax revenues की बात करें, we propose budget estimate of tax revenues of rupees 661.9 billion for financial year 2024-25 against 469.9 billion in the current financial year. Next year's collection target for Sindh sales tax on service has been set at rupees 350 billion against 235 billion for the year 2024, and I'm sure that the Sindh Revenue Board will actually exceed these targets and surprise us once again. Likewise, the revenue collection targets under excise and taxation is rupees 238 billion as compared to last year's 143.27 billion, and targets for levies under Board of Revenue have been set at rupees 60.7 billion against last year's rupees 55.218 billion. Here again, I'm sure that the excise minister will surprise us, and he's brought in new schemes which will give us windfall revenues in the coming financial year. That I would like to apprise this August House about the transforming political and economic condition in the country. Government of Sindh has been exploring avenues to finance the rising demand and cost of infrastructure development at concessional rates. However, Sindh needs a sustainable solution to its ever-increasing financing needs. It calls for levying new taxes, rationalizing the prevailing regime, assuring relief to poor segments, and capturing the
potential revenue from the affluent sections. Therefore, we have also proposed the levy of a few new taxes, which are expected to generate additional revenues of rupees 76.8 billion in the next financial year. Budget estimates for non-tax revenues have been proposed as rupees 42.9 billion. Other major components of annual receipts are related to foreign project assistance, federal PSDP, and budgetary support allocation. Budgetary estimates for 2024-25 for FPA are again estimated at a record rupees 334 billion, covering 27 foreign assisted projects from Asian Development Bank, World Bank, USAID, Islamic Development Bank, Asian Infrastructure Bank, Exim Bank, Korea, and JICA. Federal PSDP, they have committed, as I told you earlier, कि पिछले साल 52.9 थे, हमें पैसे मिले नहीं. इस साल जो PSDP आ गई है, आप सब ने दोस्तों ने अगर देखी हो, तो उन्होंने 76.9 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट के लिए मुख्तस किए हैं. अब ये हमें पैसे उनसे लेने, और ये सारी स्कीम्स अप्रूव्ड हैं, कोई कदगन नहीं है, इसलिए कि ये 1 साल पुरानी अप्रूव्ड स्कीम्स थी जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने निकाल दी थी अनफॉर्चुनेटली. सर, एनुअल डेवलपमेंट प्लान के बारे में ब्रीफली बताऊंगा. बजट एस्टिमेट्स फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आई टोल्ड यू इज रुपीज 959.1 बिलियन. It includes 493 billion of provincial ADP, 55 billion of district ADP, 334 billion for foreign project assistance, and 76.9 billion from federal PSDP schemes. Salient features, sir, बता रहा हूँ. During the preparation of ADP 2024-25, the Sindh government has decided to complete maximum number of schemes continued for the last 10 years. Sir, there are no new schemes in the budget. अगर आप देखेंगे, एक भी नई स्कीम नहीं डाली, इसलिए कि हमारा थ्रो फॉरवर्ड इतना बढ़ गया. उसके साथ इन्फ्लेशन, हमें अपना कॉम्पोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स रिवाइज करना पड़ा. उसकी वजह से जो स्कीम्स अभी तक टेंडर आउट नहीं हुई हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, ज़्यादा रिवीजन में जाएंगी. तकरीबन 80 अरब रुपए हमने बजट किए हैं फॉर इन्फ्लेशन, और यही 80 अरब रुपए अदरवाइज हम खर्च करते न्यू स्कीम्स के ऊपर. तो कोई न्यू स्कीम्स नहीं. हम हमारी प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह ताला अगले साल जो स्कीम्स हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की थी 2021-22, 2022-23, उनको 100% फंडिंग करके कंप्लीट करेंगे. 2023-24 यानी पिछले साल जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्कीम्स दी थी, जिसमें 25% एलोकेशन थी, वो सारों को मिली नहीं, इसलिए कि अप्रूव नहीं हो सकी. अब हम उसको क्यूमुलेटिव 50% अगले साल के लिए कर रहे हैं. उसके साथ साथ हर स्कीम जिसकी 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से कम चाहिए कंप्लीट होने में, उसको 100% फंडिंग दे रहे हैं. हर स्कीम जो 70% से ऊपर जिस पे एक्सपेंडिचर हो चुका है, उसको हम फुल फंडिंग दे रहे हैं ताकि वो अगले साल कंप्लीट हो जाए. वो स्कीम्स जिसकी 50 मिलियन से ज़्यादा और 100 मिलियन से कम है थ्रो फॉरवर्ड, उसको 50% एलोकेशन दे रहे हैं. और बाकी जो स्कीम्स बचती हैं उनको ओवरऑल एक बनाया ब्लॉक हमने 20% इंक्रीज़ देंगे. इस तरीके से हम जो हैं 552 ऑनगोइंग स्कीम जिनमें 70% से ऊपर कंप्लीट हुआ है उनको कंप्लीट करेंगे. 849 ऑनगोइंग स्कीम जो 5 करोड़ से कम है उनको कंप्लीट करेंगे. 858 और स्मॉल नेचर ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर रहे हैं. 80 बिलियन जैसे मैंने आपको बताया हम रख रहे हैं फॉर इन्फ्लेशन. हम टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स इसमें गई लिखा है कि टोटल कितनी कंप्लीट करें, मैं वो फाइनल उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा. वांट टू सेव टाइम हियर. मेजर जो हमारे सेक्टर्स हैं जिनके लिए हमने पैसे रखे मैं बता दूं. एजुकेशन सेक्टर में 32.163 बिलियन रुपीज़ है. इस करंट ईयर में एक्सपेंडिचर इनका 13.82 बिलियन है. 3 टाइम्स तकरीबन आपको पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कि 5 अरब और मिल रहे हैं अब खर्च करने हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ताकि. हेल्थ सेक्टर 18 बिलियन की एलोकेशन है. करंट ईयर में मैं नहीं बताता कितनी एक्सपेंडिचर हुआ है, पढ़ लीजिएगा. वाटर एंड सैनिटेशन एंड रोड सेक्टर स्कीम्स जो है लोकल गवर्नमेंट की 72 बिलियन 71.959 बिलियन उसमें रखा जा रहा है. इस साल बहुत कम एक्सपेंडिचर हुआ है और मैं चाहूँगा कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी स्कीम्स को देखे और इनको तेज़ कराए कंप्लीट. वाटर एंड सैनिटेशन जो हमारे लिए एक जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने
कहा था कि हमने 5 साल में इस सूबे के हर शहरी को साफ़ पीने का पानी मुहैया करना है। एक बहुत टॉल ऑर्डर है, उसकी हमने 22 अरब रुपए की एलोकेशन रखी, अपार्ट फ्रॉम एक ब्लॉक जो मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा, और 3.26 बिलियन इस साल खर्चा था, तो हम ऑलमोस्ट 6 टाइम्स खर्चा जो है बजट बढ़ा रहे हैं वाटर एंड सैनिटेशन का। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेंटर की 60.4 बिलियन की एलोकेशन है अगले साल। इरिगेशन की 31.09 बिलियन एलोकेशन है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक 6.63 बिलियन। सर हम ब्लॉक्स रख रहे हैं 3-4 अलग अलग ब्लॉक्स। एक ब्लॉक हम रख रहे हैं 25 अरब रुपए का फॉर सोलर एंड वाटर इनिशिएटिव्स। और इन सोलर एंड वाटर इनिशिएटिव जैसे मैंने बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि मुफ्त बिजली देंगे। ये सोलर के 10 अरब रुपए हम अगले साल रख रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ताला अगले सालों में और बढ़ाएंगे ताकि हम इस 5 साल में जो चेयरमैन साहब की विजन है उसको कंप्लीट कर सकें। वाटर में एक पूरा कंपोनेंट हब कनाल की जो स्कीम है 12 अरब रुपए की स्कीम है, उसके लिए हम 5 अरब रुपए इस साल रख रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि हमें ये जो हमारी KDA ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि वाटर बोर्ड ने कि हम 1 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, जिससे तकरीबन 100 मिलियन गैलन पर डे पानी बढ़ेगा कराची के लिए। और 1 साल में अगर वो कंप्लीट करते हैं तो हम पूरे पैसे उनके लिए अवेलेबल करेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। इसलिए K4 जब तक कंप्लीट हो कम से कम कुछ रिलीफ मिले। उसके अलावा हम लाइनिंग के लिए एक ब्लॉक रख रहे हैं 10 अरब रुपए का, और एक 15 अरब रुपए का और ब्लॉक रख रहे हैं फॉर न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ये एंड के ब्लॉक्स इसलिए भी हम पॉसिबल रख सके कि बजट की हमें आखिरी आज से 2 दिन पहले, बल्कि 2 दिन परसों यानी 2 दिन हुए चले, हमें फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनल नंबर बताया था कि क्या वो हमें देंगे पैसे। तो वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, बिकॉज उन्होंने टारगेट्स अपने बहुत हाई रखे थे। तो ये सारे कंटिजेंट हैं कि हमें ये पैसे मिले फेडरल गवर्नमेंट से। Sir, the House can recognize the shift from infrastructure development towards social sector development post 2022 floods. हमारा focus था was on reconstruction and rehabilitation of infrastructure. However, from next financial year, focus has shifted towards softer components of development in the social sectors like education, health, social protection and transport. Sir, मैं सिंध हुकूमत के मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में बड़ा ब्रीफली बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि नमाज का टाइम होने वाला है और मैं चाहूँगा कि नमाज से पहले कंप्लीट कर लूँ अपनी स्पीच। सर, our bond with Haris of Sindh is based on a commitment to improving their livelihoods. So we are introducing the Benazir Hari card, और ये ऑलरेडी बेनज़ीर हारी कार्ड जो है हम कर चुके हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट। इंशाल्लाह ताला इसके ज़रिए हम 12 लाख फार्मर्स को 7,88,000 फार्मर्स आउट ऑफ 12 लाख हम कंप्लीट कर लेंगे जल्द इनकी रजिस्ट्रेशन। और इनके लिए हमने 8 अरब रुपए की एलोकेशन रखी है टू गिव देम सपोर्ट। सर, दूसरा हमारा मेजर इनिशिएटिव अगेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, वो ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड है जो ऑलरेडी जिसका इजरा शुरू हो गया है। ये सईद गनी साहब के जब लेबर मिनिस्टर थे उसके टाइम पे शुरू हुआ था, और इसके लिए भी हमने 5 अरब रुपए इन एडिशन टू द अमाउंट दे गेट फ्रॉम वेलफेयर फ्रॉम द वर्कर्स वेलफेयर फंड हमने अपने सूबाई बजट में रखा है। सर, एक और इनिशिएटिव जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी, सिंध हुकूमत इस साल से शुरू कर रही है एक इंक्लूसिव एनक्लेव फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। So this year we are going to announce, I'm announcing it here now, I'm announcing a special initiative having far-reaching effect for differently abled persons. We are going to start a project of inclusive enclave for differently abled persons, which will be a vast complex spanning over approximately 80 acres, in which housing, hospital, school, rehabilitation center and sports facilities will be created.
Once completed, the initiative will enable them to participate fully, equally and effectively in society with others and face no barriers in all aspects of their life. This will be a source of inspiration and awareness for society and will be helpful in eliminating any discrimination faced by one of the very important segments of a population. This will help destigmatize disabilities. सर इसके सिलसिले में मैं इसकी अपडेट भी दे दूं, सूबाई काबीना ने तकरीबन 75 एकड़ 80 एकड़ लिखा था, हम फाइनल उसमें कोई 75 एकड़ बन रही है। 75 एकड़ ज़मीन बलीर एक्सप्रेस वे जहाँ कुरंगी रोड से मिलता है वहाँ पे एक जगह निकली है तकरीबन 75 एकड़ की, वो सिंध हुकूमत ने रिजर्व कर लिए फॉर दिस इंक्लूसिव एनक्लेव फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। हमने अगले साल के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से 5 अरब रुपए रखे। इरादा हमारा ये है और ये कैबिनेट अप्रूव करेगी, मैं अभी से बता रहा हूँ, अभी कैबिनेट की अप्रूवल इसकी नहीं है, हम इंशाल्लाह ताला इन ड्यू कोर्स इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ और लेटेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई कर लेंगे कि हम अप्रूवल लेंगे कि हम एक सेक्शन 42 कंपनी बनाएं जिसमें मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के लोगों की होगी उनके बोर्ड पे, जो कि वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट हों, जिनका दिल और पैशन हो, इसलिए ये पैशन से ये काम होता है। सरकार के नुमाइंदे हम बहुत मिनिमम रखेंगे और बहुत हाई लेवल पे मेरा ख्याल है चीफ सेक्रेटरी और कुछ 2-3 सेक्रेटरीज के हद तक रखेंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर के लोग रखेंगे। और हमारी उम्मीद है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट हम पेश करेंगे कि जैसे हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट में हमें डोनेशंस मिल रही हैं, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में भी हमें ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दैट वी हैव, हम उस सेक्शन 42 कंपनी से कंस्ट्रक्ट भी कराएंगे और बाद में मैनेज भी उस सारे को वो सेक्शन 42 कंपनी करेगी। तो ये हमारा एक फ्लैगशिप है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम 3-1 साल में इस मतलब काम तो अभी से शुरू होगा, 3-1 साल में इसकी इनॉग्रेशन करेंगे इस पूरे सेटअप की और हम इस पे तेज़ी से काम कर रहे हैं। अगेन दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। ये अगेन किसी और सूबे में ऐसा नहीं हुआ है। हमने ऑटिज़म 2017 से ऑटिज़म स्कूल बनाया था और अब बाकी सूबे उसको एमुलेट कर रहे हैं। हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आपको पता है कि जो कामयाबी है इस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, और अभी NEC में मेरे साथ जाम खान छोरो थे, वो कह रहे थे कि जी आप हमें सिखाएं। अभी भी उन्होंने कहा है कि आप हमारे अपने बंदे हमारे पास भेजें कि देखें कि आपने ये कामयाबी कैसे की है। इस वक्त जैसे मैंने बताया 700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बैनर चल रहे हैं सर। और 2-3 इम्पॉर्टेंट सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हम बना रहे हैं। हम कराची में सेफ सिटी का आगाज़ कर चुके हैं, 3.5 अरब रुपए हम दे चुके हैं इसके लिए ऑलरेडी, और इंशाल्लाह ताला ये तेज़ी से काम चलेगा। इसके साथ साथ हम बाकी शहरों में भी सेफ सिटी अथॉरिटी हमारी हैदराबाद सक्खर जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स है उसमें भी ये शुरू करेंगे। सर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विज़न है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलराइजेशन, मैंने अभी उसको बताया कि हम अगले 5 साल में कम से कम 25 अरब रुपए और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ही होगा, हम इन्वेस्ट करेंगे इन प्रोवाइडिंग फ्री सोलर फॉर पीपल हु डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी हियर। तकरीबन 26 लाख ख़ानदान सिंध के ऐसे हैं जिनके पास जो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है। एक तो खैर वो डिस्कोर्स जो अभी हमारे साथ कर रही है लोड शेडिंग की कि बिजली है भी तो नहीं है, वो हम उनसे निपट लेंगे, वो निपटना आता है हमें, वो लाइट काटेंगे हम उन्हें काट देंगे ठीक है। ये हालत कर दी है। मैं कुछ दिनों पहले एक दोस्त के घर गया तो दोपहर का टाइम था, अंधेरा था, घर में पंखा भी नहीं चल रहा था गर्मी में, तो मैंने कहा लाइट नहीं, कहते नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं चला रहे हो? कहते बच्चों को आदत हो जाती है लाइट की, फिर कहते हैं कि बिजली चलाओ, तो मैं इनको आदत डाल रहा हूँ कि बगैर लाइट के रहो। ये हालत कर दी है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने।